شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ایک اور اہم منصوبہ مکمل۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے منور چورنگی انڈر پاس کو عوام کے لیے کھول دیا، جبکہ منصوبے کا باضابطہ افتتاح بعد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کریں گے۔ ناصر حسین شاہ نے سندھ کی تقسیم کو دیوانے کا خواب قرار دیا، عوام کو ایسی افواہوں پر کان نہ دھرنے کا مشورہ۔ منور چورنگی انڈر پاس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ منصوبے کا افتتاح صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کیا۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی کی ترقی، جدید انفراسٹرکچر کی تعمیر اور ٹریفک مسائل کا حل سندھ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں متعدد ترقیاتی منصوبوں پر بیک وقت کام جاری ہے، جبکہ اہم شاہراہوں کی بحالی کے لیے فنڈز بھی مختص کیے جا چکے ہیں۔ کراچی میں جن پر کام ہو رہا ہے، کچھ ابھی عنقریب مکمل ہونے کو ہیں، کچھ پہ کچھ ٹائم لگے گا، کچھ بہت سارے پروجیکٹ شروع ہونے کو ہیں، تو آج اس کی سٹارٹ کیا ہے میئر صاحب۔ کچھ پالیسی بالکل واضح ہے اور سندھ کی تقسیم کبھی نہیں ہوگی، اور ہمارے یہ دوست شوشے چھوڑ دے نہیں لیتے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ منور چورنگی انڈر پاس کی تکمیل کے لیے 24 ماہ کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، تاہم منصوبہ 16 ماہ میں اپنی مقررہ وقت سے قبل ہی مکمل کر لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا سڑکوں، فلائی اوورز، انڈر پاسز، پارکس اور کھیلوں کے میدانوں سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اس سال کے بجٹ میں میجر ترقیاتی کام ہے اور انشاءاللہ اگلے 11-12 ماہ میں آپ بڑے بڑے پروجیکٹس اس شہر کے اندر مکمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جس کا فائدہ ایک عام کراچی والے کو ہوگا، جس کا فائدہ میں سمجھتا ہوں محنت کش کو ہوگا، مزدور کو ہوگا۔ اور یہ کمٹمنٹ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ اپنے منشور میں جو جو وعدے انہوں نے کیے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن، ایک ایک رہنما، ایک ایک لیڈر منصوبے سے متعلق بات کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ تقریباً 500 میٹر طویل اور 24 فٹ چوڑا یہ دو رویہ انڈر پاس کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 2 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا ہے۔ حکام کے مطابق منصوبے سے ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی اور شہریوں کو سفری سہولیات میسر آ سکیں گی۔ کراچی ریٹیلر ایسوسی ایشن نے حکومت کے گندم درآمد کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے عوامی مفاد میں اہم اقدام قرار دیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری فرید قریشی نے کہا کہ اگر فلور ملز مالکان کو بھی گندم درآمد کرنے کی اجازت دی جائے تو مارکیٹ میں مقابلے کی فضا قائم ہوگی، شہریوں کو سستا آٹا میسر آ سکے گا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ حکومت عوام کو سستی اور معیاری گندم کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ کراچی ریٹیلرز ایسوسی ایشن کا گندم درآمد کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری فرید قریشی کا کہنا تھا اگر فلور ملز مالکان کو بھی گندم درآمد کرنے کی اجازت دی جائے تو مارکیٹ میں مقابلے کی فضا قائم ہوگی اور شہریوں کو سستا آٹا میسر آ سکے گا۔ کراچی ریٹیلرز ایسوسی ایشن نے حکومت کی جانب سے گندم درآمد کرنے کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ فیصلے سے ملک میں گندم کی دستیابی بہتر ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ فرید قریشی نے مطالبہ کیا کہ جب سرکاری اور نجی شعبے دونوں گندم درآمد کریں گے تو براہ راست فائدہ صارفین کو پہنچے گا۔ حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ تاکہ جو ہمارے ملک کی گندم ہے اور یہ ملا کر باہر سے بھی جب گندم امپورٹ کر لے گی گورنمنٹ تو لازمی بات ہے کہ اس سے مسائل جو عوام کے لیے تکلیف دہ اب ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگا، اور آٹا معافر مقدار میں ملے گا اور اس سے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے اور عوام کو بھی سہولت ہوگی۔ اس لیے وفاق کو جلد سے جلد یہ کام کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ فلور ملوں کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ اپنی گندم منگوائے اور اس سے مارکیٹ کو سیٹل کیا جائے۔ کراچی ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق مسابقت بڑھنے سے آٹے کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور شہریوں کو مناسب نرخوں پر آٹا دستیاب ہوگا۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ ملک ریٹیلرز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کرنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ٹرانسپورٹ، چارے اور دیگر آپریشنل اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
काविश मेमन की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, मिल्क रिटेलर्स का तहफुजात का इजहार, डेयरी सनत दिवालिया की जानिब गामजन। मिल्क रिटेलर्स का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की पॉलिसी ने दूध फरोशों समेत रिटेलर्स का कारोबार शदीद मुतासिर कर दिया है। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वहीद गद्दी का कहना था, ट्रांसपोर्टर्स के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं, जिसका बराह रास्त असर दूध की सप्लाई, चारे और दीगर ऑपरेशनल अखराजात पर पड़ रहा है। दूध फरोशों के लिए कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो ये थैली, शॉपिंग, रबड़ बैग, ये भी पेट्रोलियम मसनूआत में शुमार होती है, इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अब जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन जब कास्ट बढ़ता है तो होलसेलर भी हमसे डिमांड करता है जी हमें ये ट्रांसपोर्ट के पैसे ज़्यादा दिए जाएँ। डेयरी फार्मर का जहाँ तक ताल्लुक है वो भी परेशान है, उसका जवाब वो खुद देंगे। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे से हर चीज महंगी हो चुकी है, इससे घरेलू अखराजात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सर अवाम कहाँ जाए, इतना महंगा दूध है, कौन सर्वाइव करेगा। अब बच्चे जिनके बेचारे दिहाड़ी वाला 500 वाला बेचारा गरीब दिहाड़ी कमा रहा है, वो कहाँ लेके जाएगा इतना ज़्यादा अपना। अभी 240 का अभी चल रहा है, अभी बच्चा नॉर्मल है, 2 बच्चे भी हैं तो 1 केजी दूध लग जाता है, वो प्लस अपनी दिहाड़ी क्या दूध में गुजारेगा सारी। महंगाई की तो बहुत डबल टेंशन पड़ गई है। 1000 रुपये का नोट 5 रुपये के बराबर है, गुजारा करना मुश्किल होता है। एक तो उधार पैसे लेते हैं, मांगते तो कहते हैं हमारे पास नहीं है। भूखे प्यासे किस तरह रातें गुजारते हैं, बैठे रहते हैं अल्लाह की याद में। कोई खाने को दे देता है तो खा लेते हैं। सूरत हाल बरकरार रहने की सूरत में दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा मजीद हो सकता है। काविश मेमन, सिटी 21। कराची में LPG माफिया ने सरकारी निर्खों को नज़रअंदाज कर दिया। गैस 350 से 380 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। LPG की सरकारी कीमत 241 रुपए किलो मुकर्रर है। काविश मेमन की रिपोर्ट। सरकारी नर्ख बेअसर, LPG माफिया बाअसर। शहर में LPG की सरकारी कीमत पर अमल दरामद न होने के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में LPG मुकर्ररा नर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही है। हुकूमत की जानिब से LPG की सरकारी कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में LPG 350 से 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जो सरकारी नर्ख से 140 रुपए फी किलो तक जायद है। शहरियों का कहना है कि LPG माफिया बेलगाम हो चुका है। मुताल्लिका इदारे सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देते हैं। तेल को देखो, हर चीज को देखो, हर चीज महंगाई है, कोई चीज का समझ नहीं आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट है, आवाम की तरफ से दूसरा रेट है। 380 रुपए चल रहा है अभी आजकल गैस। ये आया था 300 रुपये, 320 पे आया था, अभी फिर से 380 रुपये किलो हो गया है। गैस के घर के तो ख़त्म कर दिए, अब यही से भरवाना पड़ता है हम लोगों को भी। घर में चूल्हे में थोड़ी आ रहा है, सारा सिलेंडर ही भर के लेके जाते हैं हम लोग घर पे। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगी LPG से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खुसूसन वो घराने जो खाना पकाने के लिए LPG इस्तेमाल करते हैं, उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। के दिन भाई गैस नहीं है, घरों में गैस महंगा, गैस मिल रहा नहीं है। अभी दुकान से गैस भरा है, 380 रुपये किलो भर के डाल के दिया है। गैस है नहीं, बहुत तंग है सर गैस से भाई। अब गैस मिल रही नहीं है, 380 रुपये किलो डाल देती है, किधर जाए अवाम, गरीब अवाम। अवाम ने ओगरा, जिला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद, जहां साबिक तलबा और स्कूल स्टाफ के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। साबिक तलबा ने सुबह की असम्बली में शिरकत भी की। बरसों बाद अपने तालीमी इदारे में लौट कर यादों को ताज़ा किया। राबेल सदीद की रिपोर्ट। बाद वही मैदान, वही दोस्त और वही यादें, क्रिकेट ने फिर से जोड़ दी पुरानी रफाकतें। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल का ग्राउंड एक बार फिर माजी की खूबसूरत यादों से आबाद हो गया, जहां सालाना स्पोर्ट्स डे के मौके पर 1986 बैच के साबिक तलबा और स्कूल स्टाफ आमने सामने आए। साबिक तलबा ने खेल के साथ साथ सुबह की असेंबली में भी शिरकत की और अपने तालिबे इल्मी के दिनों की यादें ताज़ा करते हुए असातिज़ा और साथियों से मुलाकात की। तकरीब के मुंतज़मीन का कहना था कि 1986 बैच के तलबा क्रिकेट से खुसूसी दिलचस्पी रखते थे। इसी रिवायत को जिंदा रखने और साबिक तलबा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए इस दोस्ताना मैच का इनेकाद किया गया। हमारी 165 इयर्स की सेंटेनरी सेलिब्रेशंस थी, तो ये आए और ये बहुत एंथुजियास्टिक थे कि अपने स्कूल वापस आए, और प्रिंसिपल को ये बताया कि इनके बैच में ज़्यादातर ये लोग क्रिकेटर्स थे, तो
क्यों नहीं आप स्टूडेंट्स और हमारा स्टाफ एक मैच खेले। तो इस तरह ये आइडिया आया एंड टुडे वी आर होल्डिंग दिस मैच। साबिक तलबा ने कहा कि कई दिहाइयों बाद इसी मैदान में दोबारा क्रिकेट खेलना और अपने असातिज़ा और दोस्तों से मिलना उनके लिए नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है। उनके मुताबिक ऐसी सरगर्मियां ना सिर्फ यादें ताज़ा करती हैं बल्कि साबिक तलबा और इदारे के दरमियान ताल्लुक को भी मजीद मजबूत बनाती हैं। ये मैच आपके सामने है एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। वी गो टू द फ्लैशबैक ऑफ आवर ओल्ड मेमोरीज। क्लास 1 में हमने यहाँ पर एडमिशन लिया था, देन वी वर बैक हियर इन द क्लास 10th 1 to 10th हमने किया एंड वी आर फीलिंग फैंटाबुलस। वी आर थैंकफुल टू ऑल द स्टाफ, all the fraternity to having a wonderful match arranged. आज 40 years के बाद हम सेम उसी असेंबली में खड़े हुए हैं, हमने वही एंथम पढ़ा, उसी तरीके से सारी लाइन अप किया और इट्स हार्डली टू एक्सप्रेस कि जी व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ गोइंग ऑन द सेम पिच वी यूज्ड टू प्ले वे बैक, लेकिन इट इज़ अ मतलब इट इज़ अ awesome feeling we cannot express it. शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इसी नौयत के तकरीबात का इनेकाद जारी रखा जाएगा ताकि मुख्तलिफ बैचेस के साबका तलबा एक दूसरे से राब्ते में रहें और अपने तालीमी इदारे से वाबस्तगी मजीद मजबूत कर सके। कैमरामैन अमजद के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से शहर कायद में इज्तिमाई शादियों की तैयारियां जारी। 13 सितंबर को 12 जोड़ों की शादी की तकरीब मुनक्किद होगी। 12 जोड़ों में 10 मुस्लिम, 1 मसीही और 1 हिंदू जोड़े की शादी करवाई जाएगी। डायरेक्टर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन सैयद अमजद शाह ने कहा कि तमाम जोड़ों की इनके मजहब के मुताबिक शादियां करवाई जाएंगी। उसामा मलिक की रिपोर्ट। कराची में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 13 सितंबर को मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में 12 जोड़ों की शादियां इनके अपने मजहबी अकायद के मुताबिक करवाई जाएंगी। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर सैयद अमजद शाह के मुताबिक तकरीब में 10 मुसलमान, 1 मसीह और 1 हिंदू जोड़े की शादी करवाई जाएगी। इज्तिमाई शादियों के लिए दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हर दरख्वास्त की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद बोर्ड की मंजूरी से मुस्तहिक जोड़ों का इंतखाब किया जाता है। 13 सितंबर को ये मुनक्किद होने जा रही है और इसमें जैसा हमारा एक सिलसिला है स्क्रूटनी का, दरखास्तें लेने का, हमने अनाउंस किया हुआ है अपने तंजीमात के नेटवर्किंग के थ्रू कि मुस्तहिक तरीन लोगों की दरखास्तें हमारे पास आ जाएं। कराची के सदर मसूद अहमद उस्मानी का कहना था कि इज्तिमाई शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि मुआशरे के मुस्तहिक खानदानों की इज्जत नफ्स को बहाल करने का मौसर जरिया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मकसद जो है हमारा वो ये है कि हम इज्जत नफ्स जो है ना वो बड़ी दुल्हा की, उसकी फैमिली की, दुल्हन की, उसकी फैमिली की, ये खास तौर पर, और हमारे जैसे अपने बेटियों की शादियां होती हैं, बेटों की शादियां होती हैं, उस लेवल पे शादियां होती हैं, हम डिग्निटरीज को बुलाते हैं और इस दफा हमारे कराची को ये एजाज है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का कहना था कि इज्तिमाई शादी प्रोग्राम का मकसद मुआशी मुश्किलात के बाइस शादी से महरूम रह जाने वाले मुस्तहिक जोड़ों की माउनत करना और उन्हें बाइज्जत अंदाज में नई जिंदगी का आगाज फराहम करना है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।